What were the things that you kept in mind while writing the proposal? तब इसने मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोली कि भाई तू अगर कंसिस्टेंट रहेगा ना तो तेरा जीसॉक हो जाएगा। पूरा मैटर कंसिस्टेंसी का। सोना बंद करना पड़ेगा रात को, मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, बैठना तो पड़ता ही है। When should someone start coding to actually do GSOC in their first year? लाइक फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। सेकेंड ईयर में आके मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। लाइक सितंबर से मैंने मिड ऑफ सितंबर से चालू किया था जीसॉक। How much money have you earned during all the 2 years of your college? Around 8.1 lakhs. Hi guys, I'm Nishant Chahar. Welcome back to the channel. So इस वीडियो में we'll be talking about GSOC. We'll discuss how you can crack GSOC in your first, second year. क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, प्रपोजल कैसे लिखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइंड करनी है. We have 3 students with us. Both all 3 of them have cracked GSOC either in their first or their second year. One of them has cracked GSOC 2 times and also LFX. So बहुत सारे tips, tricks, hacks सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड एक्चुअली बताएंगे कैसे तुम लोग GSOC कर सकते हो in your first, second year or even in your third year, and how to find the right organization to contribute in. So let's first start with the introduction. So Agnik, can you please introduce yourself? Hello sir, myself Agnik Misra, BTech second year student at Newton School of Technology. This year I got selected as Google Summer of Code contributor for the second time. Okay. In my first year I got selected as a Google Summer of Code contributor in Apache Foundation. This year I got selected as a contributor in OPI SI. Apart from this, I also got selected as a intern in Linux LFX, where I had worked on the ODAN SC 5G telecom infrastructure, mainly on DevOps side. Apart from this, I also co-founded a startup that recently got funding from ISB at a valuation of 5 crores. Amazing, yeah. And I also love participating in hackathons. I own more than 5 hackathons in various IITs. So you have won multiple hackathons, you have Yep. done GSOC twice, and you have also done LFX. How much money have you earned during all the 2 years of your college? Around 8.1 lakhs. That's amazing, yeah. Crazy. Tarunay, can you please introduce yourself? Hello sir, I am Tarunay Kishorwani and this year in my first year I have cracked GSOC with C2SI as my org, and basically my contributions are on API designing and I will say high level designing, and that was the journey. And from my family background, my mother motivated me most, तेरे को जो करना है कर, जो सीखना है कर ले, कोई प्रेशर नहीं है. एंड 12th के बाद जब जेई में कुछ अच्छा नहीं हुआ था तो दैट्स व्हेन आई थिंक स्विच करते हैं, पीसीएम नहीं हो रहा मेरे से, तो कोर इसमें सीएस में आ गया मैं, तो दैट्स व्हाई एनएसटी चूज किया एंड फिर यहाँ पे फोकस करने लगा. Got it. So computer science में मज़ा आता था, but have you done coding before college? करी है तो क्या करी है? आई गेस तो 8th में शायद HTML CSS तक कर लिया था मैंने, बट इतने लेवल पे नहीं किया था. Okay. Got it. So mostly नहीं करी थी. नहीं की थी. Nice. So Karthik, can you please introduce yourself now? हेलो सर, माई सेल्फ कार्तिक गुप्ता, सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, रिशियूड यूनिवर्सिटी. आई हैव ऑल्सो क्रैक्ड गूगल समर ऑफ कोड 2026 in C2SI org, Okay. and my project is on TensorFlow, and the project name is TensorMap. It's basically I have to make 4-layer system to 15-layer system, and my core contribution was that I have done both front end, back end, and also I have created pipelines for AI ML technologies. Amazing, yeah. ठीक है, so you guys, two of you are in second year, you are Tarunay in first year. So how did you guys start coding? कि अगर स्कूल में भी कुछ थोड़ा बहुत किया हुआ था, क्या किया था when you came to college? How did you get to know about which language you need to start, if you need to do DSA, web development? I think we'll start with Tarunay and then we'll go to both of you as well. Like when did you start coding? You're currently in your first year. एक्चुअली आई स्टार्टेड कोडिंग मैं 8th वगैरह में, स्कूल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया था मेरे को, तो HTML CSS तक किया था, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता था. एंड फिर 12th में CS ले ली थी, तो वहाँ पे MySQL और पाइथन, वो स्कूल लेवल वाला हाँ. थोड़ा बहुत जितना Recursion भी नहीं सीखी होगी. रिकर्जन भी नहीं सीखी थी, हाँ. तो एरे मैनिपुलेशन बस उस पर छोड़ दिया था हमने. हाँ. फिर एक्चुअल जब यहाँ पे मैं एनएसटी में आया, अब 12th दिया है, जेई तो उतना रैंक नहीं आई थी मेरी, एंड एनएसटी था स्कोप की यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ पे बच्चे सीरियस होंगे. यहाँ पे आया तो हर कोई था कि हाँ इस साल तो हमारा भी जीसॉक हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ. लास्ट तक आके 20 प्रपोजल पे हो गया था वो. तो यहाँ पे एक अच्छा दोस्त मिल गया,
उसके साथ हम लोग लाइक लगे रहते थे। इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा सा मैं, तो घर पे मतलब वहीं रूम पे ही रहे, वहाँ पे ही कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, हर बार नया ट्राई कर रहे हैं। जीसो की डेट्स अक्टूबर में हैक्टोबर होता है, हाँ, तो सबसे पहले ओपन सोर्स में वहाँ से घुसा था। हैक्टोबर फेस्ट जो होता हैक्टोबर है। फेस्ट हाँ, वहाँ से स्टार्ट किया, फिर सितंबर तक था कि अब ऑर्ग्स के पहले ही कंट्रीब्यूट तुम्हें करना पड़ता है। ये सब नॉलेज लाइक ऑन द गो ही सीखी है बट कि तुमने जब कॉलेज में आए तो पहली लैंग्वेज कौन सी सीखी? जैसे पाइथन, जब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी कॉलेज में, स्कूल में मेरे भी पाइथन थी, तो पाइथन से C++ करना ना बहुत टफ होता है, बिकॉज मतलब पाइथन इज वेरी इजी, इंग्लिश की तरह लिखनी होती है, राइट? करिकुलम में हमारे पाइथन और जेएस साथ में पढ़ा रहे थे। ओके, करिकुलम में पढ़ा रहे थे, तो स्टार्टिंग में तुमने पाइथन एंड जेएस से ही स्टार्ट किया, तो जावास्क्रिप्ट ही सीखी, तो उससे तुम्हें थोड़ा इनिशियली एक्सपोजर मिल गया, एंड दैट वाज इन योर फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। फर्स्ट सेमेस्टर गॉट इट। तो सो जावास्क्रिप्ट मेरे को लग रहा था स्लो पढ़ा रहे लोग, तो मैं आगे बढ़ गया था, रिएक्ट कंप्लीट कर ली थी, लाइक इतना कि कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, समझ पाऊँ। ओके, इंटरव्यू लेवल पे अभी भी नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ कि अब एंगुलर नेस्ट इससे डर नहीं लगता उतना, कि समझ आता हूँ अच्छा हाँ ये एरर है। ओके, तो फिर वहाँ से चालू किया। फर्स्ट ईयर में हूँ, डेवलपमेंट बस आता है, वेब डेवलपमेंट। हाँ। और ओपन सोर्स में लाइक बहुत ज़्यादा डीप में भी जाते हैं लोग, मेरे को ऑर्ग नहीं मिल रही थी ढंग से। ओके, कोडिंग यहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत रिएक्ट तक तो कवर कर लिया था। रिएक्ट तक कवर कर लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में ही, और यहाँ पे कॉलेज में तुम्हें पाइथन और जावास्क्रिप्ट सिखाई थी, सो यू लर्न रिएक्ट ऑन योर ओन। क्या कौन से रिसोर्सेज, यूट्यूब वगैरह से ही कर रहे थे? यूट्यूब इनिशियली, फिर डॉक्यूमेंट्स पे आना ही पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन से ही कर रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन पे आना ही Nice. Agnik, how did you start coding? You're currently in your second year, and in your intro you told कि you have done GSOC twice. First year में भी, second year में भी you have done LFX also. So coding बहुत सारी करी है, but did you learn how to code in your school time, or everything you did was in college itself? So everything that I did is from my college itself. Okay. Like इधर आने से पहले मेरा फिजिकल एजुकेशन था। Okay. वो तो कभी coding 11th करी ही नहीं थी? कभी नहीं Okay. किया। तो इधर आने के बाद मेरे को था कि हाँ GSOC करना है। सो इनका वीडियोस देखा था महक जैन के ऊपर कि Right. फर्स्ट ईयर में Right, I did a 1.25 video lakhs with का Mehak. स्टाइपेंड मिला है किसी को, तो मेरे को जानना था कि कैसे करते हैं। तो इधर आके कुछ अच्छे टीचर्स मिले, लाइक राहुल सर एंड विशाल सर. So they told me कि you can start with HTML, CSS, then go to JavaScript and React Native. So that's how my journey started. So of तुम्हारा जो coding. कॉलेज का पूरा करिकुलम होगा वो तो सिमिलर ही था, राइट? You had Python and JavaScript initially, so you Yup. learned HTML, CSS on your own, and then yup. did JavaScript as well. Yep. And that was your first semester. And that was GSOC first. mostly second semester की timeline में Yup. ही होता है, right? So like जब तुमने कोडिंग स्टार्ट करी, how much time did it take for you to understand? Because जैसे तरुण को आइडिया था कि कैसे करना है, बेसिक पाइथन वाइथन आती थी, थोड़ा प्रोग्रामिंग का पता था, यू हैड नो आइडिया. Yup. हाउ डिड यू डू इट? हाउ डिड यू कोप अप? डिड यू हैव फ्रेंड्स? कुछ ग्रुप बनाया, कैसे किया? So mainly मैं लाइब्रेरी में चला जाता था और Okay. उधर जाके 4-5 वीडियोस एक टॉपिक का देखता था. जैसे मेरे को याद है HTML CSS तक, CSS में अराउंड मैं 4-5 वीडियोस देखा था, फिर समझ में आया मेरे को हाँ ऐसे होता है. So yeah. Nice, Yep. nice. So Karthik, how did you start coding? You are currently in your second year and you did GSOC this year, right? अभी इस साल GSOC किया, तो कैसे कोडिंग स्टार्ट करी थी? पहली कौन सी लैंग्वेज करी? और फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं किया GSOC? लाइक सेकंड ईयर में क्यों किया? बेसिकली 9 to 12 में कोडिंग मैंने जावा में की थी, जो बेसिकली सिर्फ ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे, रिकर्जन था, नॉर्मल था सब कुछ. फिर क्या नाम है, यहाँ पे पता चला मेरे को कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट नाम की भी चीज़ होती है, तो ये सब तो मेरे को आता नहीं था. और गिटअप के बारे में भी पता चला था, तो मैंने सोचा था कि गिटअप कर लूँगा मैं, क्या नाम है, जब तक मार्च एंड तक होगा मैं गिटअप सीख चुका हूँगा ऐसा. हाँ कॉलेज है. मार्च में मैंने गिटअप तक थोड़ा बहुत सीखा था, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं आता. कॉलेज आने से पहले? हाँ, कॉलेज आने से पहले थोड़ा बहुत सीखा था. और उसी टाइम में मैंने GSOC का भी सुना था यहाँ पे कि महक दीदी का GSOC भी हो गया है, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया. फिर थोड़ा बहुत पता चला NST का और सब कुछ कर लिया. देन फर्स्ट ईयर में आके यहाँ पे HTML CSS का था. HTML CSS में ज़्यादा कुछ नहीं आता था, फिर मैंने वो सीखा, तब तक GSOC का टाइम आ गया. फिर अग्निक ने स्टार्ट कर दिया था मेरे से पहले. इसने GSOC का स्टार्ट कर दिया था, मेरे को आता भी नहीं था. मैं सीख रहा था, लेकिन तब तक टाइम हो चुका था. फिर मैंने सोचा कि अब सेकेंड ईयर में करता हूँ. सेकेंड ईयर में फिर स्टार्टिंग से मैंने मिड ऑफ सितंबर से स्टार्ट करा था. मिड ऑफ सितंबर से मैंने क्या नाम है, सबसे पहले हैक्टोबर फेस्ट किया. हैक्टोबर फेस्ट में मैंने 10 दिन के अंदर इस वाले? इसी अक्टूबर, आफ्टर फर्स्ट? हाँ आफ्टर सेकेंड ईयर में.
तब मैंने 10+ पुल रिक्वेस्ट उसमें डाली थी और वो सारी मर्ज हो गई थी। ये अपना नाम वाम डाल के पुल रिक्वेस्ट नहीं डाली थी ना, नहीं, अच्छी पुल रिक्वेस्ट डाली थी तो 10 पुल रिक्वेस्ट वहाँ मर्ज हो गई थी। हाँ। फिर उसके बाद अच्छा कंट्रीब्यूशन चालू किया था टिल 15 दिसंबर मेरी 15+ पुल रिक्वेस्ट अलग 2 to 3 ऑर्ग्स में मर्ज हो रखी थी। फिर वहाँ से क्या नाम है, मैं एक हैकेथॉन गया जो कि MNIT जयपुर में थी। वहाँ पे मैंने, वो ओपन सोर्स हैकेथॉन थी, वहाँ पे ओवरनाइट में मैंने 19+ पुल रिक्वेस्ट डाली थी और वो हैकेथॉन हम थर्ड प्राइज जीत के आए थे। वो बेसिकली हैकेथॉन एक और गया ऑसी करके जो जीसॉक में आ रखी है, तो वो उसने करवाई थी। तभी तो यार तुम बताओ कि हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट जीसॉक? मैं ढूंढता रहता था यूट्यूब पे लाइक क्या है डेवलपमेंट कम्युनिटी में क्या हो रहा है एंड लाइक मेरी एज के कॉलेज के बच्चे क्या कर रहे हैं। तो महक दीदी का वीडियो देखा था, उधर से पता चला कि अच्छा गूगल का कुछ है क्या ये। Okay. तो उससे पता चला अच्छा जीसॉक है, ये है। कॉलेज में जब आया तब थोड़ा बहुत पता चला कि लाइक टीचर्स बताते थे कि कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग, आना मीटिंग बताएंगे। उसके बाद हैक्टोबर फेस्ट से थोड़ा बहुत पता चला कि उसमें तो बहुत यूआई वगैरह की चेंजेस वो वाली चीजें डाली बेसिक थी। चीज है। पेज बना दिया, 404 का पेज बना दिया, हाँ। वैसी चीजें डाली थी। नाइस। अक्टूबर के टाइम पे ओपन हाँ। सोर्स का कल्चर बहुत बिल्ड हुआ था कॉलेज में। यस। बट उस टाइम पे तुमने थोड़ी बहुत कोडिंग सीख ली थी, उस टाइम तक रिएक्ट तक तो जेएस तक तो कह लो आ तो गया। जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे उसमें से कितना % खुद से एक्चुअली कोड करके कंट्रीब्यूट? उस टाइम तो लाइक कर्सर वगैरह था बट वो भी अच्छे से चल नहीं रहे थे, तो खुद ही का था वो। Sir, if someone wants to do GSOC in their first year and their second year, like second year में भी crazy है मोस्टली, जो मैंने अपने दोस्तों को देखा था थर्ड ईयर में जाके कर रहे होते थे ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। जो मेरा एक दो दोस्त उसने सेकंड में ट्राई किया था, डिडंट गेट इन, थर्ड में फिर से किया तो जब ही गॉट इनटू GSOC। तो फर्स्ट ईयर में करना तो आई थिंक अनहर्ड ऑफ ही था मेरे टाइम पे। लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज 2017 to 21, मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू डू GSOC in their second third year. So when should someone start coding to actually do GSOC in their first year? Karthik, like you started coding late but तुमने second year में किया, what could have you changed in your journey जिससे तुम फर्स्ट ईयर में भी GSOC कर पाते? लाइक फर्स्ट ईयर में मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। ओके। सेकेंड ईयर में आके मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। लाइक सितंबर से, मैंने मिड ऑफ सितंबर से चालू किया था GSOC और लाइक मिड ऑफ मार्च तक किया। उस बीच मैंने 40+ पुल रिक्वेस्ट मर्ज कराई हैं डिफरेंट ऑक्स में। लाइक मैंने 8 to 10 ऑक्स में डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट टेक स्टैक के साथ पुल रिक्वेस्ट मर्ज, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट। हाँ, काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट टेक स्टैक सीखना बहुत मुश्किल है अलग अलग। तो कैसे किया, लाइक कितने सारे टेक स्टैक कैसे सीखे और कैसे फिगर आउट करी कौन सी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? लाइक मैंने पहले तो ये देखा था कि लास्ट ईयर ये GSOC में आई है कि नहीं आई है, लास्ट 2-3 ईयर्स से। लाइक मेरी पहले प्राइमरी ऑर्ग दूसरी थी, वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट में 7 to 8 पुल रिक्वेस्ट मर्ज कराई थी। देन उसमें क्या नाम, मेरे को मेंटेनर की तरफ से ये पता चला कि ये प्रोजेक्ट नहीं आएगा इस बार नहीं आएगा। हाँ, इस बार नहीं आएगा। ओके। तो मैं उसी ऑर्ग में दूसरे प्रोजेक्ट पे गया। तो वहाँ पे मैंने अच्छा खासा 10,000+ लाइन ऑफ कोड मर्ज कराए थे। बट वो मेंटेनर सेम ही था या फिर दूसरा मेंटेनर? सेम मेंटेनर था। हाँ, तो वो वहाँ पे मैंने 5 to 6 पुल रिक्वेस्ट में 10,000+ लाइन ऑफ कोड मर्ज करा दिया था। फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा गायब हो गया था। अच्छा। मैं बेसिकली चला गया था एक हैकेथॉन में, वहाँ पे मैंने 19-20 पुल रिक्वेस्ट मर्ज कराई। फिर वहाँ से पूरी रात हैकेथॉन में पूरा मैं एग्जॉस्ट हो चुका था। हाँ। रोज गिटहब पे मैसेज आते थे। कितने दिन तक तुमने रिप्लाई नहीं किया फिर? 1 महीने तक। 1 महीने तक? 1 महीने तक मैंने गिटहब नहीं खोला था। 1 महीने कौन सी हैकेथॉन में चले गए थे? नहीं, एक महीने नहीं, वो बेसिकली एंड सेम भी चालू हो गए थे। उसके बाद एंड सेम्स और क्या नाम है, गिटहब पे बहुत सारे मैसेज आते। लाइक 19-20 पुल रिक्वेस्ट बहुत सारी होती हैं, तो वो उसमें रोज कमेंट एक आ रहा है, इसको फिक्स कर दो। मैं उसको फिक्स करता हूँ, फिर कहते हैं कि इसमें ये चेंज कर दो। मैंने देखना ही बंद कर दिया। फिर मैंने दोबारा चालू किया, तो फिर मैंने कहा चलो एक स्टेप बैक लेते हैं, दूसरी ऑर्ग ढूंढते हैं। ऑक्स आने दो अभी। फिर ऑक्स आई, फिर मैंने देखा, मैंने 2 दिन में 20-25+ ऑक्स सेटअप करी रातों रात। पूरी रात 20-25 ऑर्ग सेटअप करी? हाँ, मतलब 20-25 ऑक्स देखी और फिर 5 से 6 ऑक्स सेटअप करी उसमें। वो भी काफी, हाँ, लाइक पूरा उसका कोड बेस देखना कि किसमें मैं कर सकता हूँ, कौन से कितने प्रोजेक्ट आते हैं इनके, कितने नहीं आते। लाइक मैं 2-3 दिन क्लास भी नहीं गया, मैंने कहा बाद में जाऊंगा। नाइस यार। हाँ। एंड सब अलग अलग टेक स्टैक पे थी? सारे अलग टेक सब अलग टेक स्टैक। फिर मेरे को ये वाला जो C2SI दिखा, वहाँ पे मैंने टेंसर मैप मेरा प्रोजेक्ट का नेम है, तो मैं टेंसर मैप देखा।
उसमें टेंसर फ्लो था और रिएक्ट था, तो और जावा था। Okay. तो मैंने बेसिकली जावा तो मेरे को पहले पहले से से आता करी हुई थी, है, हाँ। और क्या नाम है टेंसर फ्लो जो है वो मैं सीख लूँगा, क्योंकि आगे एआई का पूरा सब कुछ है और पूरा एमएल बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो मेरे को आगे रिज्यूमे में बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। और रिएक्ट तो मेरे को आता ही है, तो बस तो Nice. वहाँ पे फिर मैंने अराउंड 12 to 13 डेज में 15 प्लस पुल रिक्वेस्ट मर्ज करा दी थी। हाउ डू यू सी कि ये जो कोड एक्चुअली लिखा है वो अच्छा भी है कि नहीं है? हाउ डू यू रिव्यू इट? I guess I have some pointers. श्योर like, श्योर, तो बताओ। कुछ पॉइंटर्स होते हैं लाइक स्केलेबल है कि नहीं, हाँ ऑलरेडी जो कोडिंग स्टाइल चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में उससे मैच कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर में मेंटेनेबल होगा कि नहीं। अगर ये कुछ 3-4 पॉइंट्स अगर ध्यान रखोगे, उस पर फिर बेसिस पे उसको रन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और बेसिकली एक चीज़ और होती है, लाइक हमें फिक्स क्या नाम है सीएसएस का एक पार्ट फिक्स करना है, और एआई से आप करवा रहे हो तो कहीं पे भी कोड कर हाँ, सकता है। पता चले वो फाइल एक चेंज करनी तो उसने 40 फाइल चेंज कर दी, Right. तो वो आपको पता लग जाएगा उस चीज़ से। नाइस। सो Agnik, यू हैव डन GSOC ट्वाइस, Yep. राइट? सो मेरे को बताओ कि इफ समवन हैज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन GSOC की, तो कैसे करनी चाहिए? व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू लुक फॉर कि यार मेरे को ये वाली ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना है, एंड हाउ डू यू डू इट, लाइक 3-4 स्टेप्स में इफ समवन हैज टू डू? Okay. So there is a website called gsocorganizations.dev. तो उधर जाओ, उधर जाके आप देखो कि पास्ट 2 to 3 ईयर से वो वाला ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है या नहीं. हाँ, Based on that, go to the organization repo. Over there, see the activities, like the select only the top 5 repos which are जिस पे active. ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। Yep. And go there, talk to the maintainer, local set up the repo and start contributing. ओके, सो Yep. बट फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, Yep. आई गेस, राइट? अगर तुम ये भी 2-3 क्राइटेरिया फॉलो कर लो, यू विल गेट एटलीस्ट 10, 15, 20 रेपोज टू वर्क ऑन. हाउ डू यू चूज द टॉप 3, टॉप 4 आउट ऑफ दीज? Yeah. So based on this top 20 and 30 repos, see whether the maintainer is active on that repo or not. Okay. Go to the communication channels like Slack or Discord. Ask maintainer whether this repo will come or not. Based on that, select your top 3 repos. ओके, Yep. नाइस. एंड यू गाइस आल्सो डिड द सेम थिंग? Yep. कैसे सेलेक्ट किया था? मेरे ये तो तुम्हें तो आग्निक ने बता दिया होगा, तुम्हारा दोस्त है. नहीं, तरुण, basically हाउ डिड यू हाँ, डू हाँ। इट? मेरा था लाइक बहुत सारी ऑर्ग्स हैं और उसमें रेपोज भी बहुत है, तो सबसे पहले फैक्टर तो एक्टिविटी वाला भैया ने बोल ही दिया. हाँ. उसके ऊपर मैं क्लोज्ड वाला जो सेक्शन था कि कितनी पीआर ऑलरेडी क्लोज्ड है, ओके, उसमें जाके देखता था कि मेंटेनर्स मतलब जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो खुद रिप्लाई उनको नहीं मिल रहा तो खुद क्लोज कर जा रहे हैं, या मेंटेनर एक्चुअल में रिप्लाई. ओके, मतलब भाई मेंटेनर कितना एक्टिव है वो चेक करते हो तुम? मेरे में कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं था, तो उसके मैंने एक और नई पीआर रेज कर दी थी कि सर एक कम्युनिकेशन चैनल कुछ लिंक दे दो, स्लैक की लिंक दे दो. अच्छा, तो उसकी फिर मैं डाल दूंगा वेबसाइट में, अब मेरा फायदा हो जाएगा, आप प्लीज दे. तो उसमें उसने रिप्लाई किया था, उनसे फिर हम लोग गए थे कम्युनिकेशन चैनल में. बढ़िया. सो तरुण, लाइक यू डिड GSOC इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में हाउ डिड यू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर GSOC? कॉलेज की साइड से कुछ हेल्प मिली? हाउ डिड यू फाइंड योर द राइट ऑर्ग, राइट पीपल? एंड आई थिंक सो मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग GSOC थ्रू NSG. सो कैसे इतना सारा कैसे हो पा रहा है? लाइक मैं और मेरा दोस्त बहुत एग्रेसिवली लगे थे कि लाइक फर्स्ट ईयर में कुछ तो करना है अच्छा, कि लाइक कुछ हो जाए. हाँ, तो NST हमें मेंटर्स एक्चुअली प्रोवाइड इस टाइम किया था ओपन सोर्स के लिए, एंड जिनका ऑलरेडी हो चुका है GSOC, ओके, तो उनसे मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिली थी. GSOC ऑर्गेनाइजेशन .dev जो भैया ने बताया, वहाँ पे लास्ट ईयर्स के ऑर्गेनाइजेशंस और उनके मिल जाते हैं रेपोज, जिनमें प्रपोजल्स तक दिख जाते हैं बहुत बार कि पिछली बार लोगों ने कैसा किया था. उधर से हेल्प हुई थी. एंड आई गेस फुल स्टैक तक आना चाहिए अगर कंट्रीब्यूट करना है आपको. बेसिक फुल स्टैक तो आना चाहिए कि चालू कर पाओ, आप समझ पाओ कोड बेस क्या है. एंड यस, वहाँ से चालू किया था. फिर धीरे धीरे करते करते आई गेस आ जाता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है लाइक सिलेक्शन प्रोसेस. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्री GSOC टास्क वगैरह दिए हुए थे, ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे किया था, और कम्युनिकेशन कितना है, कम्युनिटी में कितना एक्टिव है, उस बेसिस पे किया था. तो ऑर्गेनाइजेशंस वाइज अलग होता है. ओके, मेक सेंस. एंड बट प्रपोजल का क्या सीन होता है? लाइक हाउ मच टाइम डिड यू गाइस टेक टू एक्चुअली राइट द प्रपोजल? डिड एनीवन हेल्प यू आउट इन राइटिंग द प्रपोजल? कार्तिकेय, फॉर यू, हाउ डिड यू राइट द प्रपोजल? लाइक मैंने प्रपोजल अपना स्टार्ट 9th of March से चालू कर दिया था, Okay. क्योंकि मेरे को मेंटर से सिग्नल मिल गया था कि
आप प्रपोजल लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 15+ पुल रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, ओके तो कोड भी समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा कि प्रपोजल देखो, तो मैं डीप टाइप किया उसमें, पूरा टेक्स्ट टैग को अच्छे से खंगाला और क्या क्या आगे डाल सकता हूँ। देन अब उसमें मैंने एक प्रपोजल में अराउंड 15-20 डेज़ दिए थे। देन मैंने अपने मेंटर्स से रिव्यू कराया था। देन दे टोल्ड कि तुम्हारा प्रपोजल NST में अभी तक सबसे अच्छा है। देन क्या बात है। लाइक वो टॉप पे चल रहा था और मेरा प्रपोजल सबको भेजा जा रहा था कि ये ऐसा प्रपोजल बनो। ऐसा क्या लिखा था प्रपोजल में, लाइक व्हाट वर द थिंग्स दैट यू केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द प्रपोजल? लाइक मैंने पूरा डीप डाइव किया था अच्छे से, मतलब एक एक चीज़ जो टेक्स्ट टैग था उसका, और जो इंट्रो पार्ट था मेरा, मैंने वो इंट्रो पार्ट भी बहुत अच्छा लिखा था। Okay. और जो आर्किटेक्चर के फ्लो डायग्राम्स थे और UI वगैरह के डिज़ाइंस थे, वो सब कुछ डाला था उसमें। ओके मतलब एक एक चीज़ मेंशन की थी। और फिर उसको मैंने जो मेरे मेंटेनर थे उनसे भी रिव्यू कराया था, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी कुछ सही है, और उन्होंने 2-3 चीज़ें फिक्स करने को दी, और मैंने अगले 1 घंटे में फिक्स करके उनको प्रपोजल वापस भेजा, और दे भी लाइक कि इतनी जल्दी कैसे कर दिया। नाइस 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 अमेजिंग। एंड LFX में भी सिमिलर होता है? LFX में भी डू यू गाइस हैव टू सबमिट एनी प्रपोजल, या जो बताया कि इंटरव्यूज होते हैं देन? LFX में भी डिपेंड करता है org to org. Okay. In my case, they took my resume and cover letter and then took the then interview. shortlisted, then did the interview and finally selected. Got it. So ऐसे proposal वाला direct depend करता है which org you are applying Depend to, and then you have every org has a different selection criteria. Got it. So how do you guys manage time? Like I think यहाँ का curriculum भी काफ़ी strict होता होगा, बहुत classes होती हैं. One of the, अगर इसको बून या बेन कुछ भी बोलो, बट जितने भी अपने न्यू एज कॉलेजेस में यू गेट टू लर्न कोडिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. सो करिकुलम भी उतना बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है. जितने भी स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं अलग अलग, इवन NSG, तो यहाँ पे जो तुम्हारे कोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा प्लान्ड होते हैं. फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट कर दी, जैसे तुम 2 लैंग्वेजेस सीख रहे हो, तुम वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, तो दैट मीन्स यू स्टार्ट कोडिंग अर्ली ऑन. तो यही सब नया है तुम्हारे लिए. देन यू टेक आउट टाइम टू लर्न फॉर GSOC, लर्न न्यू थिंग्स. हाउ डू यू डू इट? आई गेस कि करिकुलम इतना फास्ट भी नहीं है, आप कोप अप करके आगे निकल सकते हो करिकुलम के. अच्छा. एंड उसके बाद आई गेस सोना बंद करना पड़ेगा रात को. So last question from you guys. What are your learnings? You did GSOC twice, you did LFX. What are your top 2 learnings throughout the last 2 years? For you, Taruna, you have done GSOC once. You are currently in your first year. तुम्हारी top 2 learnings क्या है अभी तक की college life में? And same question for you. So we'll start from Agnik and then we'll go forward. Okay. So I think there are 3 main pillars to crack GSOC. First one is strategy, second one is the hard work, third one is luck. So out of these 3 factors, we have only 2 in our hands. First one is the hard work and second one is the strategy. Right. Hard work means you have to be consistent based on what you are doing, and smart work, I would suggest ki focus on the pull requests that would create more impact to the project rather than just the numbers. in numbers. Nice. Yep. What about you, Taruna? ओके, फ्रॉम माय साइड आई गेस कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है. एंड उसके साथ अगर आप कभी कोडिंग नहीं की है आपने, तो आई गेस वेब डेवलपमेंट में जाना अभी बहुत इजी है. लाइक जितने यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं और जितनी ज़्यादा कम्युनिटी एक्टिव है, आई गेस कभी स्टार्ट नहीं किया है तो पाइथन एंड वेब डेवलपमेंट इज़ लाइक ईजियर साइड फॉर यू. Got it. And Karthika? सेम विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. हार्ड वर्क से मेरे को लगता है हार्ड वर्क से ज़्यादा हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए. मतलब वही ना, एग्जैक्टली एक इंजीनियर का काम आगे यही है. लाइंस ऑफ कोड तो LLM लिख देता है. इट्स जस्ट कि हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट इम्पैक्ट थ्रू द लाइंस ऑफ कोड यू आर राइटिंग, राइट? कैसे तुम लेटेंसी फॉर एग्जांपल कम कर सकते हो, कैसे तुम नेटवर्क कॉल्स को फास्ट कर सकते हो, मतलब कैसे कोई एक्चुअल इम्पैक्ट यूजर पे एंड यूजर के लिए ला सकते हो, वही मैटर करता है रादर देन राइटिंग अ लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड. बट यार, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइस. एंड आई थिंक फर्स्ट सेकंड ईयर में इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो. लाइक ऑल द बेस्ट टू यू. वट एवर यू आर डूइंग इज सुपर ग्रेट. मेरे को तो आधी चीज़ें पता भी नहीं थी व्हेन आई वाज योर एज. लाइक रेजिंग, डूइंग GSOC इन फर्स्ट सेकंड ईयर, एंड लाइक कंटिन्यू दिस, एंड ऐसे ही करते रहो. काफ़ी अमेजिंग चीज़ें करोगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Really loved this conversation, and I think see you soon. And thank you for all the tips that you have given to the viewers.